call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last class, I did talk about trigonometric functions, the basic introduction, and followed by degree and radian measure. So we had a simple formula that 180 degrees is equal to pi radian. So using this single formula, we can go for the convergence from radian to degrees and vice versa. So for this case, is convert 6 radians into degrees. Now, we know pi radian is 180 degrees. This implies 1 radian could be 180 by pi degrees, or we need for 6 radian. So 6 radian will be equal to 6 into 180 by pi degrees. I have applied a simple unitary approach. Now, we want the answer in terms of degrees. That means answer should not contain pi. Replace the value of pi by 22 by 7. So probably 7 would come over here. Now go for a simple calculation. 2 cancel it out. 2 3 the and 2 के ऊपर गया. So that is 21 into 180 by 11 degrees. Go for this multiplication. So whatever answer you are getting, and then go for a division method. वो already मैं पूरा करवा चुका हूँ आपको. So that is 378 upon 11 degrees. तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतना बनाया है, बट अब आपको इसको फर्दर कंप्लीट कैसे करना होता है. 11 के ऊपर डिवाइड करा, so this is the remainder. So this would be 34 degrees complete हो गया, और प्लस में बच गया था 4 by 11 degrees. 4 is the remainder over 11. So this is expressed as 4 over 11. Now this is to be further converted into, yes. So ये 3780 नहीं होना चाहिए, ऊपर 180 से कर रहे हैं. Oh yes, sorry, it is 180. Yes, yes, ठीक है. ये 0 भी एक आएगा यहाँ पर, right? तो एक 0 आ गया, तो कितना हो जाएगा ये अब आपका यहाँ पर 40 और 33 हो जाएगा, and then 7. Yes. So यहाँ मैंने ध्यान दिया नहीं इस चीज पे. So that simply means अब ये आपके पास कितना आ गया है, 343 डिग्रीज कंप्लीट हो गया था, और प्लस में आपके पास कितना आ रहा है 7 over 11. 7 बच गया था. ये डिग्रीज में आया है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड गेट इट कन्वर्टेड इनटू मिनट्स. That way you can easily understand. Further आप इसको डिवाइड करेंगे and then can get your answer in minutes and seconds also. So please complete this question in your homework. इसके बाद तो सिंपल है. Now check this out. Recall, if a arc of a circle whose arc length is L and the radius of the circle is R, making the central angle as theta in radians, then we have seen the formula theta is equal to L by R. So we will make use of this particular formula here. Find the radius of a circle central angle 60 degree intercepts an arc of length 37.4.
So the situation is something like this. आपको रेडियस बताना है. So let this is R. Central angle is 60 degrees and the arc length is 37.4 centimeter. Remember, theta must be in radians. So 60 degrees is equal to pi by 3 radians. और अब आप फॉर्मूला लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू L by R. So pi by 3, ये थीटा आ गया, L is known to me and divided by R. Cross multiply, pi into R is equal to this value और R will be, ये पाई से डिवाइड हो जाएगा और पाई देखो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में. So use the specific value if it is given in the question, else it is your choice, whichever you think is correct or make your calculation little bit easier, use that. Unit would be, radius की unit क्या आएगी? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. लेंथ आपका सेंटीमीटर में था, तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली द रेडियस वुड बी अगेन सेंटीमीटर. Go for this calculation, you will have your required answer. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. सबसे पहले एक वॉच का एक सिचुएशन को समझिए. ये लेबलिंग है यहाँ पर, ये 12, then 1, then 2, then 3, 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो they are equidistant आपके रखे हुए हैं. Now एक आपके पास आवर हैंड होता है और एक होता है मिनट हैंड. मिनट हैंड ऑलमोस्ट आपका टच करता है इस सर्कुलर आर्क के ऊपर. दैट यू कैन चेक आउट इन द वॉच. ठीक है, तो अब आप चेक करिए, बात करी गई है अबाउट द मिनट हैंड. तो लेट मी क्विकली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनट हैंड. ये मिनट हैंड है. मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं, कंप्लीट जब ये 1 रोटेशन ले लेगा, कंप्लीट 1 रोटेशन का मतलब इन 1 आवर कितना एंगल फॉर्म हुआ है सेंटर पर. 1 आवर में मिनट हैंड से इजंट इट 360 डिग्रीज. इसी पोजीशन पे जब ये घूम कर वापस आएगा, सोचकर देखिए, ये यहाँ है मिनट हैंड. ये जब पूरा एक राउंड लगेगा इसका, इट विल टेक अ कंप्लीट 1 राउंड टू रीच एट द सेम पोजीशन. और उतने में 1 आवर कंप्लीट हुआ है. तो 1 आवर के अंदर सेंटर पे इस मिनट हैंड ने एंगल 360 डिग्री बनाया है. व्हाट डज दैट मीन? 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स में एंगल फॉर्म हुआ 360 डिग्रीज. और यूनिटरी मेथड से सोचिए, 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म हो गया? 6 डिग्रीज. So learn this. Yes, ठीक है प्रफुल्ल. So learn this in fact as a standard rule कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में एक्चुअल में 6 डिग्रीज एंगल टर्न करता है. 1 मिनट में 6 डिग्रीज. दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर मैं बात करूं फॉर आवर हैंड, छोटे वाली सुई जो होती है, सो आवर हैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 मिनट में मूव करता है हाउ मच डिग्रीज? एनीवन? एनी आइडिया अबाउट दिस? Though you can easily calculate this, so I take this, give you this as a task. This is half degrees. Exactly, it is half degrees. But for our concept or our जो problem solving है, we do not need this result. हमें मिनट हैंड पे फोकस करना है. तो मिनट हैंड ने बनाया 6 डिग्रीज. बैक टू आवर प्रॉब्लम. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. यह रेडियस का काम करेगा. सोच के देखिए डायग्राम में, ये हो गया 1.5.
how far does its tip move in 40 minutes? तो 40 मिनट्स में आप सोच के देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, ये मान लीजिए इस एग्जैक्ट 3 के ऊपर मान लो, चलो ये है, तो ये रहा आपका यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, और 40 मिनट्स का मतलब जस्ट आफ्टर 40 मिनट ये इस डायरेक्शन में मूव करा और मान लीजिए यहाँ आ गया, राइट? तो दिस टर्न इज टेकन इन 40 मिनट्स। तो आप सोच के देखिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मिनट हैंड 1 मिनट में टर्न करा 6 डिग्रीज, तो 40 मिनट में कितना टर्न करेगा? 240 डिग्री। सर ये 40 मिनट्स नहीं हुआ, ये तो 30 मिनट से भी कम हुआ। क्या चीज? वो डायग्राम रफ है, दैट इज अ रफ स्केच, उसको छोड़ो, मेन कंसेप्ट को समझो कि 40 मिनट में जब हम आ रहे हैं तब कितना एंगल फॉर्म होगा, तो दैट वुड बी 240 डिग्रीज। और फार्मूला हमें पता है अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर लगाने वाले हैं, तो आई नीड माई एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो एंगल को जरा रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 240 डिग्रीज रेडियन में कैसे होगा? इनटू पाई बाय 180। कितना आ गया ये? 4/3 पाई। नाउ थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आपसे यही तो पूछा था, हाउ फार। हाउ फार का मतलब ये डिस्टेंस पूछा है, विच इज आवर एल, जिसको हम एल कह देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और आर आपको गिवन है 1.5 रेडियस। बस अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एल आ जाएगा 1.5 इंटू 4 पाई बाय 3। ऑफ कोर्स हम आंसर जब भी लेंथ का बताएंगे तो पाई की टर्म में तो नहीं रखेंगे, तो आप पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 या 3.14, वो अब आप गिवन है। यस, इट इज गिवन। अच्छा, मैंने नोटिस वैसे नहीं करा, तो गिवन है 3.14, तो वो ही यूज करेंगे। सॉल्व इट। ठीक है, प्रफुल इज गिविंग द आंसर, तो चेक कर लीजिए आप सभी। यस, ठीक है जतिन, परफेक्ट। 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है जीवेश। यस, ओके, चलो गुड। आतिफ, राइट, परफेक्ट देव। यस, टाइम टू मार्क योर अटेंडेंस क्विकली। सिंपल P will also work, no problem। के पूरा प्रेजेंट सर लिखना है, P will work। जैसे अब निपुण लेफ्ट द क्लास आफ्टर मार्किंग, तो वो मैंने नोट कर लिया है, तो वो एब्सेंट में ही आएगा। कोई भी अगर लीव कर रहा है ऐसे में, Aloknath left the meeting. Good, very good. Okay. सर मेरा सेंड ही नहीं हो रहा, फेल टू सेंड लिखा रहा है। कौन बोल रहा है? सर निपुण कुमार। आपका तो यहाँ लेफ्ट द मीटिंग, पता नहीं मेरे पास आया मैसेज। चलो ठीक है, I'll check it out. Okay, चलिए ठीक है। Check out next question. If the arcs of the same length or two different circle हैं, so it subtend the angle of 65 degree and 110 degrees at the center, find the ratio of their radii। तो आपके पास आर्क लेंथ सेम गिवन है, राइट? तो वो कैसा डायग्राम होगा वो देखने वाली बात है, बट एक आइडिया क्या दिया है कि आर्क लेंथ सेम है, तो इफ दिस इज एल, दिस इज ऑल्सो एल,
रेडियस अलग अलग हैं, तो ये अगर मैंने R1 ले लिया, इसका रेडियस R2 ले लिया, एंड एंगल कितना बना है, एक ने बनाया 65 डिग्री और एक ने बनाया 110। सो डायग्राम्स आर नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि 110 की बात करेंगे वो कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। बट इसकी मैं बात नहीं कर रहा, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज प्योरली अ रफ स्केच। तो आपको रेशियो ऑफ देयर रेडियाई पूछा है। डू रिमेंबर 65 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ये करना रहेगा, and 110 degrees would be 110 into pi by 180, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डिग्री नहीं लगेगा, ये छोटी सी चीज है, बस ध्यान रखेंगे यहाँ डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि ये अब एक्चुअल रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ थीटा इज इक्वल टू L by R, यूज दिस कंसेप्ट। पहला केस ये आ गया, and this is equal to L by R1. Excuse me sir. Yes. सर इन दोनों की लेंथ कैसे सेम हो सकती है, क्योंकि इनका एंगल तो सस्पेंडेड डिफरेंट है ना। रेडियस दोनों के अलग अलग हैं, तो ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल। ये गिवन है आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो L सेम गिवन है, डायग्राम में नहीं लग रहा है देखने से, बट इट इज पॉसिबल। वो एंगल जब मैं एग्जैक्ट बनाऊंगा तभी ये आइडिया लगेगा। सेकंड केस में क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू L बाय R2 हो गया। बस अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड कर दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, and get the value of R1 ratio R2. Do it in your homework, simple question है। सिंपल रिलेशन आने के बाद तो आसानी से हो जाएगा बाय डिवाइडिंग these two values। 13 ratio 20, yes, थोड़ा ध्यान से करो, इट इज 22 रेशो 13, आपने रिवर्स कर दिया है। यस, ठीक है आतिफ, राइट, परफेक्ट, देव, गुड, ठीक है जातिफ। प्रफुल्ल ध्यान से सोचो, जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन गिवन है उसी ऑर्डर में जाएगा, तो 13:22 नहीं आ रहा है। दमन ठीक है, अनुज ठीक है, जिवेश, चल डन, good। Based on this, you have this NCERT exercise 3.1. Most of the questions are straightforward and simple. Find the radian measures for the corresponding angle. Shivang left the meeting. Okay. Yes. So, जैसे second part है, just the basic idea, इट हार्डली मैटर नेगेटिव साइन अगर दिया भी हुआ है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 47 डिग्रीज और 30 मिनट को ये आपने डिग्री में चेंज कर दिया। डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, तो माइनस में कितना आ गया, ये 47। ये आप भी नोट कर रहे होंगे, आशीष लेफ्ट द मीटिंग। सो 47 डिग्रीज और 30/60 हो गया 1/2 डिग्रीज, 1/2 आ गया। अब इट इज अ नॉर्मल कैलकुलेशन, तो 47 2 कर लिया, 95/2 डिग्रीज। और फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, 180 डिग्रीज होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री 1/π/180 हो गया, तो -95/2 डिग्रीज की जब बात करेंगे, सो दैट वुड बी माइनस ऑफ 95/2 इंटू π/180। गो फॉर दिस कैलकुलेशन, और याद रखिए अब हम आंसर रेडियंस की टर्म में निकाल रहे हैं, तो आंसर शुड हैव पाई विद इट। Shivang, what happened? You left and then joining the meeting again?
ओके, आतिफ ने आंसर दिया है। ओके, फाइंड degree measure for the following concept already discussed, so do it in your homework। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ये वाला आंसर जरा क्विकली बता दीजिए क्या होगा आंसर। व्हाट इज दिस? 300। ओके, 5 इंटू बेटर रहेगा, वी थिंक इन द फॉलोइंग वे, और ये 60 डिग्रीज था, 300 डिग्रीज। तो इस तरह से इनके आंसर तो हम क्विक दे सकते हैं। यस, फॉर दीज पार्ट्स वी नीड टू सॉल्व देम प्रॉपरली। यस, ठीक है, आंसर आप सभी के ठीक है जाते हैं। निकुंज, जिवेश, राइट, परफेक्ट। आतिफ, गुड। ठीक है अनुज। नाउ चेक आउट दिस क्वेश्चन। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? आपको सेकंड की टर्म में अल्टीमेटली आना है। तो आपको क्या गिवन है? इन 1 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने गिवन है? 360। That is in 60 seconds number of revolution given है 360। तो इसका मतलब एक सेकंड में कितने हो गए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन? 6। एक सेकंड में 6 रही है। परफेक्ट आंसर। एक सेकंड में अगर 6 रिवोल्यूशन है, सोच के देखिए, कोई भी अगर व्हील है, या ये व्हील है, अगर ये व्हील कंप्लीट एक रोटेशन लेता है, कंप्लीट एक रोटेशन का मतलब मान लो यहां से यहां तक आने में कंप्लीट रोटेशन, तो इट हैज एक्चुअली मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर, और उस केस में सेंटर पे एंगल घूमा होगा एग्जैक्टली 2 पाई का, माने 360 डिग्रीज। अब एक सेकंड में अगर 6 रिवॉल्यूशन है, तो बस वही पूछा है, रेडियन में आपको बताना है। तो इन 1 रिवॉल्यूशन एंगल टर्न, ये एंगल फॉर्म कितना हुआ था? 2 पाई। फाइनली 6 राउंड हुए हैं, तो 6 राउंड में कितना हो गया? 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 pi radians. Your required answer. Check out this question. This is direct question for your homework. I'll not discuss this. Straightforward है. Another very simple question for your homework. You just need to have a basic understanding. Circle का diameter 40 है, तो radius कितना हो गया? 20, और length of the chord 20 है। ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, ये पार्ट ऑफ अ सर्कल है। ये सर्कल तो चलो पूरा ये था, राइट? तो पार्ट ऑफ द सर्कल लिया, और ये भी 20 गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ठीक है, राइट, ठीक है आतिफ। तो आपको ये माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। ये एंगल कितना बन गया? This central angle form will be 60 degrees, क्योंकि ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और 60 डिग्रीज का मतलब पाई बाय 3 रेडियंस। देन यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला।
check it out, very similar to the example already done. वहां 65 डिग्रीज एंड 110 डिग्री समथिंग लाइक दैट वो एंगल गिवन थे. यहां बस ये चेंज है, बाकी सेम सिचुएशन है. तो पेंडुलम जब भी स्विंग करेगा तो इमेजिन अ सिचुएशन, ये इस तरह से पेंडुलम की मूवमेंट है, राइट. तो ये सिचुएशन लिया गया है और आर्क लेंथ अलग अलग केस दिए हुए हैं. आपको 75 सेंटीमीटर की लेंथ दिया है. ये यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला एंड गेट द एंगल. वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. Based on the concept of degrees and radians, initially check out the following questions. I'll share the assignment. तो ये assignment में से है trigonometry के. Find the degree measure corresponding to this. Find the radian measures. I'm sure you can attempt these questions easily. एक बार focus करिए third question. Find the magnitude in radians and degrees. किसका? Of the interior angle of a regular pentagon. So regular pentagon का मतलब क्या हो गया? ये 5 sided figure होती है जिसकी all 5 sides are equal. Can anyone tell me what is the measure of each equal angle of a regular pentagon? So 70. Anyone? 72. Okay. Anyone else? चलिए, ये आपने 9th में करा हुआ है. क्या करा हुआ है वो रूल देख लीजिए. इन n-sided regular 5 minus 2 into 180 होगा. Okay. In a n-sided regular polygon, each equal internal angle जो है, each equal internal angle is given by the formula n minus 2 by n into 180 degree. So what does that mean? In our this case, पेंटागन है, n is 5 रखकर सॉल्व करें, which is 3 by 5 into 180 degrees, 36 and 108 degrees. तो वैसे ये याद हो जाता होना चाहिए 9th ऑनवर्ड कि पेंटागन का ईच इंटरनल एंगल 108 डिग्रीज आता है. एंड हाउ कम? Here is the formula. Using this formula, you can get the angle for octagon, heptagon. Heptagon का मतलब n is 7, octagon 8. Heptagon का दूसरा नाम होता है, anyone? क्या कहते हैं heptagon का synonym? It is septagon. And how many sided this duodecagon have? 12. Sorry? It's 12. Yes. आप चेक करिए, डेकागन का मतलब 12 होता है और ड्यूओ का मतलब डबल हो, मतलब 2 ऐड हो रहे हैं, या डबल नहीं हो रहा, 2 ऐड हो रहे हैं. तो ड्यूओ डेकागन स्टैंड फॉर 12 साइडेड पॉलीगन. तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गेट द नंबर ऑफ, वो n को पुट करके पहले एंगल निकाल दीजिए इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, और याद रखिए आपसे दोनों मेजर में पूछा है. कंप्लीट दिस, फॉलोड बाय 2-3 फाइनली क्वेश्चंस फ्रॉम द असाइनमेंट. चेक देम आउट. In a right angle triangle,
the difference between two acute angle is pi by 18. Express the angles in terms of degrees. तो आप चेक करिए क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा. एक मेरे पास a प्लस सी कितना है, एंगल a प्लस एंगल c 90 डिग्रीज, क्योंकि एंगल b ऑलरेडी 90 था, राइट एंगल है. और आपको डिफरेंस गिवन है इन दोनों एंगल्स का पाई बाय 18. हमने एज्यूम करा है एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल c, तभी बिगर माइनस स्मॉलर लिया और वो पाई बाय 18 गिवन है. टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, a और c में आ गई हैं आपकी दो इक्वेशंस. यू कैन इजीली सॉल्व. इन्हें आप सॉल्व कर देंगे, गेट द वैल्यू ऑफ a एंड c. बट याद रखिए आपका आंसर अभी रेडियंस में आ रहा है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अल्टीमेटली डिग्रीज में पूछा है. सर 55 एंड 35. ठीक है, वो आप सॉल्व कर लीजिए. आई डोंट हैव द आंसर राइट नाउ विद मी, दैट यू कैन क्रॉस चेक. ओके, 55 एंड 35, 55 एंड 35 डिग्रीज. एवरीवन प्लीज चेक आउट एंड कंफर्म, अपने आप देख लेना. चेक आउट दिस क्वेश्चन. The angles of a triangle are in AP, and the number of degrees in the least to the number of radians in the greatest is 60/pi. Find the angles. सबसे पहली बात, angles of a triangle are in AP. How I am going to start? ए बी सी अगर ये एंगल है तो दे आर इन एपी. और साथ में मुझे एक चीज और पता है, इन तीनों का सम इसके इक्वल होता है 180, माने पाई के इक्वल होता है. और अगर आपको सम गिवन हो तो 3 एंगल्स आप क्या एज्यूम करेंगे? एनी A minus D, A plus D. The first and the most important step of this question. If the sum is given for the 3 terms in AP that you have already studied in class 10th, तब आपको एंगल ये लेने हैं. I could take A plus D and A plus 2D also, but that will make the question much calculative. तो पहला काम ये एंगल ले लिया. अब इन तीनों का सम, ये गिवन है पाई के इक्वल, और 3a इज पाई और a इज पाई बाय 3. a पाई बाय 3 आने का मतलब क्या हो गया? एंगल्स एक्चुअली क्या हो गए? पाई बाय 3 माइनस डी. ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं बस अभी. ए की 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, वो अभी चेक कर लेते हैं. ये तो एंगल्स हैं. अब हम आते हैं मेन जो ये स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट. तो आप चेक करिए, लीस्ट माने सबसे छोटा एंगल, वो ये हो गया. तो डिग्रीज में जब बात करेंगे तो वो तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी. और इसकी रेशो किसके साथ कही है? नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट ये होगा, और 60 प्लस डी अगर ये मैंने डिग्रीज में लिख दिया, हाउ इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू रेडियंस? आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, और ये रेशो गिवन है आपको 60/पाई.
60/pi. This is given to me. This is the most important step of this question. Cross multiply and simplify, you will get the value of d. d की value replace कर देंगे, I will get the angles. So someone was sharing the answer. क्या आंसर बताया है? सर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ओके आतिफ, और बाकियों के एक दो देखे हैं मैंने आंसर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बट याद रखिए हाफ मार्क डिडक्ट क्यों होगा? रेडियन में पूछा था, तो आंसर शुड बी π/6, π/3 एंड π/2। तो ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, क्योंकि कहा गया है ये क्वेश्चन में। मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन क्विकली। Make sure to mark your attendance, and this is the last question for your homework. I am not solving this. Formula यही use होना है, n-2/n into 180 degrees. Each internal angle of a regular polygon of n sides. So this formula will be used to solve this particular question. Hint मैंने दे दिया है. Complete up to this in your homework. Any doubt to anyone? Thank you very much. You can leave the meeting now. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. God bless you all.